morning, friends. I already discussed you the question paper pattern of our periodic writing test 1. As there are always 4 sections: reading, writing, grammar, and textbook. So our 50 marks paper will be divided in these 4 sections, but there will be one exercises of each of them. So as reading passage, then writing letter or writing paragraph, then solving grammar exercises, textbook questions, passage extract, poem lines, like that. So that our paper will be very small and very easy. There will be no any problem. You can easily solve it. So how to solve comprehension of passage, that reading section, that I am going to tell you about little bit some hints of reading passages. So let us come as a section A, reading chapter unseen passage. So in unseen passage you see that passages are from outside the text, and there are two types of passages: factual passage and discursive passage. Factual passage is based on real facts, reality, and discursive passages are also dependent on reality and facts, but they come from thinking level, imagination, as there is a discussion about any topic by thinking process. And here you see the incidents, events, they are given as they are. So this is factual passage and this is discursive passage, and they are near about 300 to 350 words. And earlier those two passages were one for 8 marks and second was for 12 marks. 1 marks question for 8 marks, and then 2 marks question, 2 into 4 means 4 questions of 2 marks each, and remaining 4 were MCQs as 12 marks questions. So the real pattern is like this: 8 marks passage and 12 marks passage. But this year again it has been changed, that there will be 10 marks each. Two questions will be for 20 marks, and there will be MCQs, and some questions may be answer in description. So whether they are MCQs or descriptive type questions, we should be able to solve them. So how to score maximum marks in comprehension of passages, that I am going to tell you about. Scoring maximum marks in comprehension passage is a skill which can be mastered by constant practice. ऐसे पैसेज जो सॉल्व करना होता है, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझना, और उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पैसेज में कैसे मार्क्स मिल सकते हैं, इसके लिए इसे कांस्टेंट प्रैक्टिस की ज़रूरत है. कांस्टेंट यानी हमेशा, ऑलवेज, लगातार. प्रैक्टिस यानी वो हमेशा हमें आदत चाहिए उसकी. कांस्टेंट प्रैक्टिस का मतलब है कि हमेशा उसकी आदत चाहिए, हमेशा हम
एक पैसेज, दूसरा पैसेज, तीसरा पैसेज, चौथा पैसेज, ऐसा रियलिटी के आधार पे, इंसिडेंट इवेंट के आधार पे फैक्चुअल पैसेज, डिस्कर्सिव इमेजिनेटिव थिंकिंग लेवल पे जो डिस्कर्सिव रहता है, ऐसे टाइप का पैसेज। तो दोनों टाइप के पैसेज की प्रैक्टिस चाहिए। बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन अ स्टूडेंट मस्ट रीड द पैसेज केयरफुली, और ऐसे पैसेज को अच्छी तरह से केयरफुली पढ़ने का, एंड देन ट्राई टू फाइंड द आंसर फ्रॉम द पैसेज। और फिर पैसेज को अच्छी तरह से रीड किया, फिर बाद में क्या करने का, वो पैसेज को अच्छी तरह से समझा, पहली बार नहीं समझ में आया तो और सेकंड रीडिंग करने का, और सेकंड रीडिंग में भी नहीं समझ में आ रहा है तो और थर्ड रीडिंग करने का। लेकिन एग्ज़ाम में हम टाइम की तरफ भी देखना चाहिए, नहीं तो फिर एक ही पैसेज में, एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो फिर दूसरे क्वेश्चंस आप सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो ये हम अभी से बोर्ड एग्ज़ाम के इस यूनिट टेस्ट, छोटे छोटे एग्ज़ाम से प्रैक्टिस करना है। और वैसे हम प्रैक्टिस साल भर करते रहेंगे, लेकिन आप भी ऐसे आपके जो रेफरेंस बुक रहते हैं, गाइड रहते हैं, उसमें भी ऐसे पैसेज, ग्रामर, राइटिंग सेक्शन, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर सब दिए रहते हैं। तो बार बार प्रैक्टिस करने का, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस यू कैनॉट प्रोसीड टू डेवलप, इजंट इट? सो डियर स्टूडेंट्स, तो इसे प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और अच्छा रीड करने के बाद देन ट्राई टू फाइंड द आंसर फ्रॉम द पैसेज इटसेल्फ बाय फोकसिंग मेनली ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द आंसर। पैसेज को रीड करना, फिर क्वेश्चन रीड करना, और क्वेश्चन को क्या आंसर चाहिए, क्वेश्चन में कौन से वर्ड है, वो हिसाब से क्या आंसर चाहिए वो पैसेज में देखने का। आंसर्स मस्ट बी रिटन इन वंस ओन लैंग्वेज। और ज़्यादा से ज़्यादा समझो, 1 मार्क का, 2 मार्क का पैसेज का आंसर लिखना है डिस्क्रिप्टिव, तो वो अपनी भाषा में लिखना चाहिए। और जैसे कि वैसे वर्बिटिम, यानी कि एंड नॉट कॉपीड वर्बटिम फ्रॉम द टेक्स्ट। और टेक्स्ट बुक से वर्बटिम का मतलब है जैसे कि वैसे शब्द को कॉपी नहीं करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड वर्बटिम। वर्बटिम यानी जैसे कि वैसे शब्दों को उठाना और वो आंसर में लिखना। अभी बहुत ही ध्यान में नहीं आ रहा तो आप उसका मीनिंग लगा के एडजस्ट करके कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली वी शुड ट्राई टू राइट दैट आंसर इन आवर own language, then you can get more marks for it, isn't it? And if there are the questions of MCQs, then there is no problem, you can choose the right option from them. Okay. Hmm. So what is the purpose? The objective of this unseen passage is outside the text. Seen passage means from our textbook, from our lesson poem, and unseen means they are also from the books but outside our textbooks. To comprehend the passage, comprehend का मतलब है understanding, passage को understanding करना, to identify the main points of the text, और टेक्स्ट बुक के जो मेन पॉइंट है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानने का। और फिर वो टेक्स्ट में के, वो पैसेज में का जो लिखा हुआ है उसको हम टेक्स्ट बोलते हैं, उसमें मेन पॉइंट्स क्या है उसको आइडेंटिफाई करना, मतलब उसको पहचानने का कि ये पैसेज में मेन मेन पॉइंट्स क्या है। टेक्स्ट यानी लिखा हुआ जो मैटर रहता है उसको टेक्स्ट बोलते हैं, और उसमें जो मेन पॉइंट्स रहता है वो लिखा हुआ मैटर में या तो पैसेज में या कहीं भी, तो उसको पहचानना यानी कि आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना, और फिर इसी तरह से वो पैसेज को समझना है। कॉम्प्रिहेंड का मतलब है समझना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग। और 8 मार्क्स का, 12 मार्क्स का ऐसे पैसेज रहता है, ये मार्क्स कोई मायने नहीं रखता है, उसका पैटर्न हमेशा चेंज होते रहता है। कभी 7 मार्क्स का रहता है, कभी 8 मार्क्स का रहता है, कभी 5 मार्क्स का रहता है ना, कभी 8 मार्क्स का रहता है, कोई 12 मार्क्स का रहता है, छोटा मोटा ऐसा पैसेज रहता है। लेकिन पैसेज इज पैसेज, वी हैव टू रीड एंड सॉल्व इट, डजंट मैटर। ऑब्जेक्टिव, टू कॉम्प्रिहेंड द पैसेज एंड टू आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट्स ऑफ द टेक्स्ट। तो ऑब्जेक्टिव उसका जो मैंने बताया वही है, और उसके लिए मार्किंग जो रहता है, अभी डिस्क्रिप्टिव है तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन, या तो फिर 1 मार्क का क्वेश्चन, या तो फिर कोई MCQs रहते हैं। और इसमें पेनल्टी वगैरह यानी कि जो मार्क्स कम करते हैं ना उसको पेनल्टी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता है
कि कुछ आपका सेंटेंस जो आंसर बनाते हैं वो आपके हिसाब से बनाते हैं, या कोई थोड़ा बहुत छोटा मोटा एक आध बारीक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है ना, कोई शब्द जो अपने लैंग्वेज में लिखा, तो ऐसे इसमें चेंजेस को कोई मार्क्स वगैरह ऐसे काटते नहीं है, समझ में। सिर्फ मीनिंग लगना चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर है तो मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसी तरह से पैसेज को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके यूजफुल टिप्स क्या है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे और कैसे सॉल्व करने का। टिप्स फॉर सॉल्विंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज: रीड द पैसेज केयरफुली एंड थरोली। थरोली यानी कम्प्लीटली, पैसेज को कम्प्लीटली रीड करना, केयरफुली रीड करना। द रीडिंग शुड बी डन विथ स्पीड एंड क्विकनेस। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। आप जो रीडिंग करते हैं वो स्पीड से होना चाहिए, और एक क्विकनेस यानी कि एक जल्दी से भी वो पैसेज जो है वो आप रीड कर सकते हैं। और पैसेज रीड करने में स्पीड भी चाहिए और जल्दी होना भी चाहिए, लेकिन वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ भी होना चाहिए, दैट इज़ आल्सो मस्ट। और पैसेज को पूरा रीड करिए केयरफुली, यानी कि उसको अच्छी तरह से ध्यान में लीजिए, उसको बोलते हैं केयरफुली। फोकस ऑन द रिलेवेंट डिटेल्स। रिलेवेंट यानी रिलेटेड, संबंधित, कौन से पॉइंट से, मेन पॉइंट से यानी कि डिटेल से, वो संबंधित पॉइंट के ऊपर फोकस कीजिए, ध्यान आकर्षित कीजिए। एंड अंडरलाइन देम विद अ पेन और पेंसिल। पेन या तो पेंसिल से मेन पॉइंट को आप रीडिंग करते समय ही अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। और इसी तरह से पैसेज को धीरे धीरे शुरुआत से रीड करते जाते हैं, और फिर मेन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करते हैं। फिर बाद में वो पैसेज एक बार समझ में नहीं आया तो एक दूसरी बार और समझ में ले सकते हैं, लेकिन पहली बार ही अच्छी तरह से ध्यान देकर पढ़ते पढ़ते मेन पॉइंट्स कौन से उसके ऊपर ध्यान देते हुए अंडरलाइन करते हुए मेन पॉइंट्स को, और आगे फिर जो क्वेश्चंस है उसको अच्छी तरह से समझना, पढ़ने का। एंड फिर बाद में आपके आंसर ध्यान में आ जाते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो फिर गो बैक टू द पैसेज टू फाइंड द आंसर्स। फिर से आप पैसेज को देखिए और क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन का अर्थ और वो हिसाब से पैसेज में उसका आंसर कहाँ है, तो पैसेज में फिर से वो देखने का। ओके, क्वेश्चन को देखिए, उसको समझिए क्वेश्चन को, और फिर बाद में पैसेज में आप फिर से देखिए और फिर वो क्वेश्चन का आंसर पैसेज के आधार पे लिख सकते हैं। द आंसर्स आर जनरली इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। पहले क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन का, तीसरे क्वेश्चन का, चौथे, पाँचवें, ऐसे समझो 7 प्रश्न है, 7 प्रश्न के जो आंसर है, तो वो बड़ा पैसेज है, उसमें और 3-4 छोटे छोटे पैराग्राफ रहते हैं, या तो शुरुआत के लाइन, फिर बीच में के लाइन, बाद में के लाइन्स। तो ऐसे शुरुआत के लाइन्स, फिर उसके नीचे के लाइन्स, फिर उसके नीचे के लाइन्स, फिर उसके मिडल के लाइन्स, फिर उसके नीचे के लाइन्स और उसके नीचे के लाइन्स, ऐसे रहते हैं। या एक ही बड़ा पैराग्राफ में छोटे छोटे कुछ पैराग्राफ रहते हैं, तो ऐसा पहला क्वेश्चन का आंसर शुरुआत के लाइन्स में रहेगा, दूसरा क्वेश्चन का आंसर और आगे के लाइन्स में रहेंगे, तीसरा क्वेश्चन का आंसर और आगे के लाइन्स में, चौथा क्वेश्चन का आंसर और आगे के लाइन्स में रहेगा। ऐसे सीक्वेंस से ही उसके क्वेश्चन के आंसर रहते हैं। तो शुरुआत से ही आप वो पहला क्वेश्चन का शुरुआत में देखना, दूसरा क्वेश्चन का फिर बाद में उसके नीचे के लाइन्स में, तीसरा क्वेश्चन का फिर और उसके नीचे के लाइन्स में, चौथा क्वेश्चन का फिर उसके नीचे के लाइन्स में, ऐसे ही क्रम से ही क्वेश्चन के आंसर शुरुआत से नीचे तक ऐसे वो लाइन्स में देखते जाने का आपके पूरे ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, हाँ। तो फिर इस तरह से आप उसको ध्यान में ले सकते हैं। और इसको बोलते हैं लॉजिकल सीक्वेंस, यानी कि क्रम से। ट्राई टू राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। और आपके खुद के शब्दों में आंसर्स लिखिए। टू फाइंड आंसर्स टू द वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस लाइक सिनोनिम्स। सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द, एंटोनिम्स यानी विरुद्धार्थी शब्द, अपोजिट वर्ड्स, और सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग वर्ड, समानार्थी। तो ऐसे जो वोकेबुलरी यानी कि जो शब्द रहते हैं, वर्ड मीनिंग, उसको वोकेबुलरी बोलते हैं। ऐसे भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं। सिनोनिम्स यानी समानार्थी, एंटोनिम्स यानी विरुद्धार्थी या तो अपोजिट। और फिर जो पैसेज में है
Find the same meaning word or synonym from the passage. Find the opposite or antonym word from the passage. जो शब्द दिया है वो शब्द का विरुद्धार्थी या तो समानार्थी शब्द पैसेज में वो कौन सा है वो देखो। फिर एमसीक्यू रहते हैं, फिर या तो फिर एमसीक्यू में है तो दिया है तो एमसीक्यू चूज करने का, नहीं एमसीक्यू है तो फिर पैसेज में कहा है ऐसा ढूंढने के लिए बोला है तो पैसेज में से देखने का, और रिप्लेस द वर्ड विद द मीनिंग, और फिर वो शब्द को क्या करने का, सिनोनिम या तो एंटोनिम के लिए देना है तो वो मीनिंग लगा के फिर वो राइट चूज करना, या तो पैसेज में से वो कहाँ है वो देखना। और इफ़ यू फाइंड दैट इट इज़ द सेम मीनिंग, और फिर आपको लगता है कि वो ढूंढा हुआ शब्द पैसेज में का या तो एमसीक्यू में से चूज किया वाला सेम अर्थ लगता है सिनोनिम का एंटोनिम का, फिर दैट योर आंसर इज करेक्ट। टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू में देखिए, ढूंढिए, गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स को पैसेज में देखिए, री रीड द पैसेज एंड देन टिक द करेक्ट ऑप्शन, पैसेज को बार बार पढ़िए और फिर करेक्ट कौन सा है वो आप करिए। अभी एक पैसेज मैंने दिया है, so what is the passage about it that I am going to tell you now? What do you watch here? What are the images here? Here you see some nuts, small fruits are given, some small seeds are given here. So what is the seeds are here? What are the seeds of, or what are the nuts of, what are the small fruits of, as you can imagine and think. So here you see these are the seeds, small nuts or small fruits from cocoa tree. Cocoa is a kind of tree plant, and that cocoa, कोकम, cocoa ऐसे बोलते हैं ना, तो that cocoa tree you see that is mostly grown in US, Mexico. So this cocoa tree bears this type of small fruits, including like these seeds. So this is a trunk of cocoa tree, and these are cocoa trees, nuts, fruits, and then those nuts or fruits include like these seeds. Again you can see after ripening or growing, this type of yellowish fruit or nuts are naturally made, and they consist these types of seeds, isn't it? Then these seeds are open like again fluffy soft part is there in that seed after ripening. Ripening यानी मैच्योर, पकने के बाद ऐसा होता है वो कोकोआ ट्री का सीड या तो फ्रूट, और उसके नट्स, नट्स यानी स्मॉल फ्रूट, जैसे ये आलमंड, बादाम, काजू, पिस्ता है ना, अखरोट रहता है, ये सभी नट्स कैटेगरी में आता है। और पकने के बाद देखो वो ऐसे वो कोकोआ ट्री का जो नट है, फ्रूट है, जो छोटा सा ये फ्रूट है, जो ड्राई फ्रूट में हम बोल सकते हैं या नट्स कैटेगरी में बोल सकते हैं, उसके अंदर ऐसे ये कैडबरी कलर के ऐसे बीज रहते हैं, सीड्स रहते हैं, और फिर उसके बाद ये ऐसा वो नट्स से, उसके बीज से ऐसा ये कैडबरी का पाउडर बनाया जाता है, उसका हॉट ड्रिंक्स भी बना सकते हैं। तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ chocolate from cocoa seeds. So the passage is depended on this. So the history of chocolate, that you children prefer to eat chocolates and Cadbury's candies very much, isn't it? That chocolate drink is also there, Bornvita. Hmm? One of the most popular foods of all time is chocolate. सभी समय जो फूड करके चॉकलेट है उसको आप हम सभी लोग एंजॉय करते हैं। पीपल नाउ डेज ईट चॉकलेट इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। चॉकलेट को अब आजकल अलग अलग कैडबरी, कैंडी, बॉर्नविटा और हॉट ड्रिंक्स जैसे चाय वगैरह इसके रूप में चॉकलेट को खाया जाता है।
वी ईट चॉकलेट कैंडी, चॉकलेट की कैंडी बार, एंड वी ड्रिंक हॉट बोर्नविटा जैसे, या दूसरे कोई कॉफ़ी टी जैसा हॉट ड्रिंक भी बनाया जाता है चॉकलेट का पाउडर का। और कोल्ड चॉकलेट ड्रिंक्स, हॉट और कोल्ड चॉकलेट ड्रिंक्स बनाए जाते हैं। द चॉकलेट आर The chocolate we eat today is made from a lot of different ingredients. Ingredients का मतलब साहित्य। कोई भी पदार्थ बनाते हैं, कोई भी फूड आइटम बनाते हैं, तो उसमें जो अलग अलग पदार्थ रहते हैं उनको इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। जैसे फूड रेसिपी में आप नेट पे, वीडियो पे, यूट्यूब पे देखते हैं अलग अलग, जैसे कोई खाने के चीज़ें बनाते हैं रेसिपी, उसमें ये चीज़ बनाने के लिए, है ना, समोसा बनाने के लिए, पनीर की सब्जी के लिए कौन से फूड आइटम्स यानी कि इंग्रेडिएंट चाहिए, ऐसे ये चॉकलेट बनाने के लिए भी जो फूड आइटम है तो क्या है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज ककाओ बीन। तो चॉकलेट बनाने के लिए अलग अलग फ्लेवर्स, पाउडर, अलग अलग सेंट्स रहते हैं, लेकिन मेन आइटम जो रहता है वो ककोआ बीन रहता है, जो मैंने ये बोला। ये जो है ना ककोआ, फ्रूट का, ड्राई फ्रूट का, नट का, जो उसके ये सीड रहते हैं, तो ये सीड का ऐसा पाउडर बनाने के बाद उसका ऐसे लगदा बनाते हैं, और फिर ये पाउडर का हॉट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट बनाने में, कैडबरी बनाने में, ऐसे ये पेड़ के जो कोकोआ के जो फ्रूट है उसका बीज से ये ऐसा बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, द स्टोरी ऑफ कोकोआ बीन एंड इट्स लॉन्ग जर्नी टू स्टोर्स एंड सुपरमार्केट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टार्टेड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो इन मैक्सिको। तो मैक्सिको में ये चॉकलेट का पहले निर्माण हुआ, उसका जर्नी वो मैक्सिको से स्टार्ट हुआ, और वो स्टोर, सुपरमार्केट, शॉप में, छोटे मोटे शॉप में आजकल देखते हैं। कोकोआ ट्रीज नीड हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। कोकोआ ट्री जहाँ ग्रो होता है वहाँ एकदम गर्म और आर्द्रता युक्त हवामान यानी कि वेदर, एटमॉस्फेयर चाहिए। एंड दे ओरिजिनली ग्रीव इन द युकाटन पेनिनसुला। और ये जो एक आइलैंड करके और समुंदर के किनारे जो युकाटन पेनिनसुला मेक्सिको तरफ जो एरिया है, वहाँ ओरिजिनली ये कोकोआ ट्री ज़्यादा मात्रा में उनकी पैदावार है। और द माया वेयर द फर्स्ट पीपल टू ईट कोकोआ बीन्स। और वहाँ माया जो लोग हैं युकाटन पेनिनसुला में, वहाँ रहने वाले जो माया लोग हैं, उन्होंने पहले ये कोकोआ बीन्स वो खाए, वो पेड़ से। दे पिक्ड कोकोआ बीन्स फ्रॉम वाइल्ड ट्रीज। और जंगली पेड़ से उन्होंने ये कोकोआ बीन्स उन्होंने पाए और उसको खाए। एंड क्लियर्ड लैंड टू कल्टिवेट देयर ओन ट्रीज। तो कोकोआ प्लांट जो है वो जंगली स्वरूप से वो ग्रो होते थे, और फिर उनको खेती करने के लिए उन्होंने बहुत सारे ये वाइल्ड ट्रीज को हटा दिया, और खुद की फसल उगाने के लिए, खुद के ट्रीज लगाने के लिए वो कल्टीवेट किया, उसकी मशागत की। कल्टीवेट का मतलब है मशागत करना। दे मेड अ ड्रिंक फ्रॉम कोकोआ बीन्स। और कोकोआ बीन्स से उन्होंने क्या, एक ड्रिंक बनाया, पेय बनाया, बेवरेजेस जिसे बोलते हैं, है ना। एंड एक्सचेंज द बीन्स फॉर अदर गुड्स। और ये जो सीड्स है, तो पुराने ज़माने में करेंसी नहीं रहता था, तो एक्सचेंज के स्वरूप से आप बीज देंगे। आजकल भी देखो वो एरंड वगैरह जो रहता है वो बीज गांव में देते हो, और एक्सचेंज में नमक लेते हैं, या कोई दूसरे कोई चीज़ रहता है वो उससे आदमी से ले लेते हैं, गुड़ या तो नमक, साल्ट वगैरह ऐसा बेचता है वो। एक्सचेंज यानी ये देना और दूसरा उसके स्वरूप में लेना, उसको बोलते हैं एक्सचेंज। आदान प्रदान, लेन देन, उसको बोलते हैं एक्सचेंज। दे आल्सो यूज्ड कोकोआ बीन्स फॉर रिलीजियस सेरेमनीज। और धार्मिक समारंभ में भी ये कोकोआ बीन्स यूज़ करते थे वो लोग। और मायन, वो जो माया जाति के जो लोग हैं, और जो वो मायन लोग हैं, तो मायन मर्चेंट्स ट्रैवल्ड नॉर्थ एंड इंट्रोड्यूस्ड कोकोआ बीन्स टू द एजेटिक पीपल। और दूसरे जो एजेटिक प्रजाति के जो लोग हैं, जो ट्राइब के लोग हैं, उनको भी ये मायन लोगों ने ये
कोकोआ बीन्स उसका परिचय दिया जब वो मेक्सिको से नॉर्थ अमेरिका में उधर मूव हुए, मतलब उधर गए। सुन द कोकोआ बीन वॉज पार्ट ऑफ द एजेटिक्स लाइव्स। और ये जो एजेटिक ट्राइब या तो वो जो लोग हैं उनके भी जीवन का हिस्सा ये कोकोआ बीन मायन जैसे वो लोगों जैसे बना। दे यूज्ड इट एज ए ड्रिंक, उन्होंने ड्रिंक के रूप में, एज पार्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनीज, धार्मिक समारंभ में, एंड इवन एज मनी, और लेन देन के लिए मनी के स्वरूप में भी ये उन्होंने यूज़ किया। विथ 10 बीन्स, और 10 वो सीड्स बीन्स आपने दिया। बीन्स मतलब क्या होता है, जैसे ये वाल पापड़ी या कोई भी सेंग रहती है और उसके अंदर जो ऐसे दाने रहते हैं वाल पापड़ी के या कोई सेंग के, जो ऐसे नट्स रहते हैं, दाने रहते हैं, उसको बीन्स बोलते हैं, जैसे शेंग दाना वगैरह ऐसा। विथ 10 बीन्स यू कुड बाय अ रैबिट, तो 10 बीन्स दिया तो एक रैबिट खरीदे जाते थे। विथ 100 बीन्स यू कुड बाय अ स्लेव, और जो निग्रो या अफ्रीका से जो गुलाम, स्लेव यानी गुलाम, काम करने के लिए नौकर चाकर, तो 100 बीन्स दिया तो एक गुलाम खरीदो। और वन ऑफ द एजेट्स गॉड, ये थोड़ा एक अधूरा लाइन है, वो ऑलरेडी इन द पैसेज। नेक्स्ट, द एजेट्स कुड नॉट ग्रो कोकोआ ट्रीज बिकॉज ऑफ द ड्राई क्लाइमेट। और एजेट्स जो वो एरिया में के एजेट्स जो लोग हैं, ये कोकोआ ट्री को कुछ ग्रो नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ ड्राई क्लाइमेट है और इसके लिए ह्यूमिड और हॉट क्लाइमेट चाहिए ये कोकोआ ट्रीज बीन्स ग्रो होने के लिए। व्हेन द एजेटेक्स कॉन्कर्ड द माया, और एजेटेक्स लोगों ने जब माया ट्राइब को जीता, कॉन्कर यानी जीतना, दे आस्क फॉर कोकोआ बीन्स अ ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट यानी एक वरदान, एक फायदेमंद का प्रतीक, दैट इज कॉल्ड ट्रिब्यूट। और किसी को श्रद्धांजलि मरने के बाद देते हैं उसको भी ट्रिब्यूट बोलते हैं, लेकिन यहाँ ट्रिब्यूट का मतलब है अ गुड साइन, एक अच्छा सिंबल, प्रतीक। तो ये कोकोआ बीन्स उनके लिए एक अच्छा साधन उसके रूप में प्राप्त हुआ जब ये एजेटिक्स लोगों ने माया लोगों को जीता। तो अभी इसके ऊपर क्वेश्चन, तो देखो ये जो ये है इसके मतलब ये जो बीज है, ये जो कोकोआ फ्रूट के, ड्राई फ्रूट के जो बीज निकलते हैं और फिर बहुत ही बढ़िया बढ़िया मस्त ब्राउनिश चॉकलेट जैसे ही वो बीज रहते हैं कोकोआ प्लांट्स के, और फिर उससे ऐसा पाउडर बनाते हैं चॉकलेट का। और फिर डियर स्टूडेंट्स उससे ऐसे चॉकलेट अलग अलग कलर में, फ्लेवर्स में बनाते हैं, है ना। देखो इधर ये ऐसे मिंट्स है ना, छोटे छोटे गोली टैबलेट के रूप में, अच्छे अलग अलग शेप में, कैडबरी है ना, छोटे मोटे चॉकलेट कैंडी कैडबरी ऐसे बनाते हैं। तो अभी इसके क्वेश्चन क्या है, तो ऐसा पैसेज आपको समझ में आना चाहिए जैसे मैंने बताया। अभी इसके क्वेश्चन है, रीड एंड सर्कल द मिस्टेक्स इन सेंटेंसेस। तो अभी इसमें क्या है, ये 3 वाक्य दिए, इसमें क्या मिस्टेक है, द चॉकलेट इज नॉट पॉपुलर नाउअडेज। चॉकलेट पॉपुलर है क्या नहीं, क्योंकि इधर पैसेज में बोला है पॉपुलर है क्या नहीं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फूड्स ऑफ ऑल टाइम इज चॉकलेट, तो मतलब पॉपुलर है, पॉपुलर यानी पसंद है, फेमस है, प्रसिद्ध है, लोगों को बहुत अच्छे पसंद है वो, दैट इज पॉपुलर। तो फिर ये आंसर बताता है कि पॉपुलर नहीं है, तो फिर मिस्टेक ढूंढना है कि इज नॉट पॉपुलर, तो ये मिस्टेक है, तो करेक्ट कैसे करेंगे, द चॉकलेट इज पॉपुलर नाउअडेज, नॉट को निकाल देना। द कोकोआ ट्रीज ग्रो इन यूरोप, कोकोआ ट्री यूरोप में, इंग्लैंड फ्रांस जो है वो यूरोप साइड में ग्रो होता है क्या, ग्रो यानी पैदा होना, बढ़ना नहीं। तो इधर दिया है कि वो युकाटन पेनिनसुला है ना, युकाटन पेनिनसुला और मेक्सिको यानी वो अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका वो साइड में आता है, इसलिए वो अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। कि वो बोलते हैं कि वो कोकोआ ट्रीज ग्रो इन यूरोप, तो दैट इज आल्सो रॉन्ग। सो कोकोआ ट्रीज ग्रो इन मेक्सिको एंड युकाटन पेनिनसुला इन नॉर्थ अमेरिका, तो ऐसा उसका आंसर आएगा, यूरोप गलत है। द माया मेड ब्रेड फ्रॉम द कोकोआ बीन्स, माया जो लोग हैं उन्होंने उससे ब्रेड बनाया क्या,
The Maya were the first people to eat cocoa beans. They picked cocoa beans from wild trees and cleared land. They made a drink from cocoa beans and exchanged the beans for other goods. They also used cocoa beans for religious ceremonies. तो इसका भाकर बिकर नहीं बनाया, ब्रेड वगैरह नहीं बनाया, तो हॉट ड्रिंक वगैरह बनाया. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग दैट the Maya people made hot drinks from cocoa beans, not bread. ऐसा करेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस. तो हमने ये स्टोरी को पढ़ा कोकोआ बीन्स का, चॉकलेट का. तो उसका पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द चॉकलेट कम फ्रॉम. चॉकलेट कहाँ से आया, है ना. चॉकलेट जो मार्केट में आया वो कहाँ से आया, इजंट इट. तो ये चॉकलेट जो है हम देखते हैं कि आजकल बहुत ही फेमस है, इजंट इट. वो सुपर मार्केट इसमें जो आया है उसमें डिफरेंट मटेरियल्स रहते हैं. तो इसका लॉन्ग जर्नी जो है स्टोर्स, शॉप, सुपर मार्केट्स में, वो मेक्सिको, मतलब वो मेक्सिको से आया. पहले वो 100 years अगो इन मेक्सिको. मेक्सिको इज़ small country. It is also a country in North America. So it is independent country Mexico. तो in Mexico, तो मेक्सिको में से तो मेक्सिको में से चॉकलेट आया. तो चॉकलेट कम्स फ्रॉम मेक्सिको फर्स्ट. व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट इन चॉकलेट. चॉकलेट में मेन इंग्रेडिएंट क्या रहता है, अभी हम देख रहे हैं कि उसमें ये कोकोआ सीड रहता है ना. तो मेन जो इंग्रेडिएंट है, द इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट इन चॉकलेट इज कोकोआ सीड. तो कोकोआ सीड का पाउडर या तो कोकोआ सीड जो है वो उसका मुख्य अंग है. इंग्रेडिएंट यानी मुख्य पार्ट या तो मुख्य आइटम खाने का वगैरह ऐसे. वेयर डिड कोकोआ बीन्स ओरिजिनली ग्रो. कोकोआ बीन जो बीन्स है, वो जो नट्स है, वो कहाँ ओरिजिनली पहले शुरुआत में ज़्यादा ग्रो होते हुए दिखाई देते हैं. तो यू सी हियर, चॉकलेट मेक्सिको में से आया. कोकोआ ट्रीज नीड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड दे ओरिजिनली ग्रीव इन द युकाटन पेनिनसुला. तो युकाटन पेनिनसुला वो जो आइलैंड है युकाटन अमेरिका साइड में, मेक्सिको के बाजू में, तो वो युकाटन पेनिनसुला, वो द्वीप जो है युकाटन पेनिनसुला, पेनिनसुला यानी वो द्वीप. तो युकाटन द्वीप आइलैंड, वहाँ ये प्लांट पहले ग्रो हुए हमें दिखाई देता है, कोकोआ ट्रीज. और फिर बाद में वो चॉकलेट मेक्सिको में बना. तो where did cocoa beans originally grow. Cocoa beans originally grew in Yucatan Peninsula. Who were the first people to eat cocoa beans. cocoa beans पहले शुरुआत में किसने खाए, पहले शुरुआत में the Maya were the first ट्राइबल पीपल टू ईट कोकोआ बीन्स. तो इधर दिया है कि माया जो लोग हैं ये युकाटन पेनिनसुला में वहाँ रहते थे. ये माया लोग, उन्होंने पहले ये कोकोआ बीन्स जंगल के रूप में देखा और फिर वो जंगली पेड़ को काटने गए और वो अपने खुद के पेड़ आम बीम कुछ लगाते होंगे उसके लिए गए. तो फिर पहली बार उन्होंने ये कोकोआ सीड जो है वो पहली बार उन्होंने वो खाए. कौन लोग, माया लोगों ने, माया, है ना. तो who were the first people to eat cocoa beans. Maya were the first people to eat cocoa beans. Next, who introduced the cocoa beans to the Aztecs. और वो एजेटिक्स जो लोग हैं, तो वो एजेट्स लोगों को पहली बार कोकोआ बीन्स किसने परिचित दिया, इंट्रोड्यूस यानी परिचित करना, तो वो है माया ही. तो माया इंट्रोड्यूस द कोकोआ बीन्स टू द एजेटेक्स. तो वो एजेटेक्स जो नॉर्थ अमेरिका में दूसरे ट्राइबल लोग हैं, तो वो एजेटेक्स को पहली बार कोकोआ बीन जो परिचय उसका इंट्रोड्यूस किया, मतलब परिचय दिया. तो वो माया लोग जो वहाँ रहते थे वो अपना युकाटन पेनिनसुला में, तो वो माया लोगों ने ये एजेटेक्स लोगों को पहली बार ये कोकोआ बीन्स का परिचय दिया. इंट्रोड्यूस यानी परिचय करना. तो हु यानी किसने,
तो वही माया इंट्रोड्यूस द कोकोआ बीन्स टू द एजेटिक्स। तो माया लोगों ने ही एजेटिक्स लोगों को, ट्राइबल को, ये कोकोआ बीन्स का परिचय दिया। इंट्रोड्यूस यानी परिचय देना, करना। नेक्स्ट, व्हाट डिड द एजेटिक्स यूज द कोकोआ बीन्स फॉर? एजेटिक्स जो लोग हैं वो कोकोआ बीन को किस लिए उन्होंने यूज किया, है ना। तो यहाँ जो है कि माया वेयर द फर्स्ट पीपल टू ईट कोकोआ बीन्स एंड दे इंट्रोड्यूस्ड, और उन्होंने ही दे इंट्रोड्यूस्ड कोकोआ बीन्स टू द एजेटिक्स पीपल। तो माया जो लोग हैं वो मायन मर्चेंट्स जो थे, माया पीपल, उनके जो व्यापारी, तो फिर आप लिख सकते हैं इसके लिए कि हु इंट्रोड्यूस्ड द कोकोआ बीन्स टू द एजेटिक्स। तो Mayan merchants traveled north and they introduced cocoa beans to the Aztecs people. फिर बाद में एजेटिक्स लोगों ने ये किस लिए यूज़ किया? Soon the cocoa bean was part of Aztecs life and they used it as a drink, as part of religious ceremonies and as money. जैसे ये मायन लोग उसका यूज़ धार्मिक समारंभ में, जैसे हम आज गेहूँ चावल को पूजा पत्री के लिए यूज़ करते, वैसे ये लोग भी धार्मिक समारंभ के लिए ये इसके सीड जो हैं वो यूज़ करते थे धार्मिक समारंभ में, कोकोआ सीड को। और हॉट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक बनाना, इसके लिए भी यूज़ करते थे। तो एजेटिक्स जो लोग हैं उन्होंने भी उसका हॉट ड्रिंक और धार्मिक रूढ़ी और कुछ पैसे के एक्सचेंज लेन देन में, जैसे कि 10 सीड बीन्स दिया तो रैबिट लेने का, 100 बीन्स दिया, सीड दिया तो फिर गुलाम खरीदी करने का, ऐसे इसके लिए वो यूज़ करते थे, है ना। व्हाट डिड द एजेटिक्स यूज द कोकोआ बीन्स फॉर? तो ये थोड़ा बड़ा आंसर लिखने का 2 मार्क्स के लिए। द एजेटिक्स यूज्ड कोकोआ बीन्स फॉर मेकिंग हॉट ड्रिंक्स, देन एज रिलीजियस पर्पस फॉर वर्शिपिंग गॉड, है ना, पूजा पाठ करने के लिए वो सीड्स का इस्तेमाल करना, वर्शिपिंग यानी पूजा करना, और मनी करके, एक्सचेंज करके भी उन्होंने यूज़ किया। व्हाट डिड द माया गिव द एजेटिक्स एज अ ट्रिब्यूट? और माया लोगों ने एजेटिक्स लोगों को क्या एक भेंट दिया, ट्रिब्यूट किया, समथिंग इम्पोर्टेंट। तो जब एजेटिक्स लोगों ने इनके ऊपर अटैक किया और इनको जीता, माया लोगों को, तो फिर माया लोगों का जो ये कोकोआ प्लांट ट्री का, उसका सीड का जो भेंट था, जो उन्होंने ही सिखाया था इनको, एजेटिक्स को, तो फिर वो उनको तोहफे के रूप में एक इम्पोर्टेंट चीज़ के रूप में उनको मिला। तो मायन और माया गेव एजेटिक्स कोकोआ सीड्स एज अ ट्रिब्यूट टू देम। ट्रिब्यूट यानी समथिंग इम्पोर्टेंट चीज़, ऐसा। तो इस तरह से आप ये पैसेज को फिर से पढ़िए और इसका क्वेश्चन का आंसर लिखिए और सॉल्व करके बताइए। थैंक यू। ऐसे एग्ज़ाम में आप पैसेज को अच्छी तरह से, जैसे मैंने समझाया, समझने का, पढ़ने का और क्वेश्चन का आंसर इस तरह से लिखने का, वेरी इजी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।